نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہے، ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی ابتدا سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت، برکت اور عظمت کو بیان فرمایا۔ فضائل اعمال ہر مسجد میں کتاب ہے، اس کے اندر بہت لمبی چوڑی حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی موجود ہے۔ تو مہمان بڑا تو اس کے لیے انتظام بڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی فضیلت کو آنے سے پہلے بیان فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کے لیے اللہ نے خاص فرمایا، پہلے والے کسی امت کو نہیں ملا۔ اور پھر اس مہینے کے اندر حکم یہ ہوا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب مہینہ آ جائے تو اس میں روزے رکھو۔ اور پھر اس مہینے کے اندر پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے اس آسمان دنیا تک جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک ہی مرتبہ پورا قرآن نازل ہوا 25 کی رات کو۔ اس کے بعد 23 سال کے دور میں تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت ہوئی اللہ جل جلالہ نے حضرت جبریل کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو پورا قرآن لوح محفوظ سے اس آسمان دنیا تک رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ہی وقت میں نازل ہوا۔ اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ، اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابتدائی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی وہ بھی 17 رمضان المبارک۔ تو معلوم ہوا کہ اس مہینے کے اندر روزہ بھی ہے، قرآن کا نزول بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن اور رمضان، قرآن اور روزہ، ان کا آپس میں خصوصی تعلق ہے۔ صرف یہ قرآن کریم نہیں بلکہ پہلے والے آسمانی کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ بھی اس وقت جب انہوں نے روزے رکھے، اور مہینہ وہ بھی رمضان کا تھا۔ اگرچہ نازل ہونے کا مہینہ رمضان کا، لیکن رمضان کے روزے ان پر فرض نہیں، رمضان کے روزے اس امت پر فرض ہوئے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کی دربار میں پیش ہوں گے۔ قیامت والے دن
फिर सिफारिश करेंगे। अस्सियाम वल कुरान यअतियान यौमल क़ियामत यशफ़आन लिल अब्द, क़यामत वाले दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। सिफारिश का अंदाज़, तरीका हर एक का अपना अपना होता है। आज अगर किसी की सिफारिश होती है, कोई बाप सिफारिश करता है, कभी भाई सिफारिश करता है, कभी चचा सिफारिश करता है, कभी दोस्त अहबाब सिफारिश करते हैं, तो इनकी सिफारिश का तरीका अपना होता है। बाप अपने अल्फाजों में सिफारिश करेगा, दोस्त अपने लबो लहजा में सिफारिश करेगा, तो सिफारिश दोनों करेंगे। पर आगे वाले की मर्जी है कि सिफारिश को कबूल करें या न करें। लेकिन जब एक बंदे के लिए कुरान भी सिफारिश करे और रोज़ा भी सिफारिश करे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में खुशखबरी सुनाई कि इस आदमी के लिए दोनों को सिफारिश अल्लाह कबूल फरमाएंगे। लबो लहजा दोनों का अलग, तरीका अलग। कुरान ये कहेगा कि या अल्लाह, रात के वक़्त जब ये आराम करते थे, दुनिया आराम में होती थी, ये खड़े होकर मेरी तिलावत करता था। जब रात के वक़्त आदमी अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है, नवाफिल में ज़िंदगी गुजारता है, ये तरावी भी उसकी एक सूरत है कि आदमी थका हुआ है, मेहनत मजदूरी से वापस आया, लेकिन फिर भी कहता है कि यार एक महीना है रमज़ानुल मुबारक का, ये ऐसे न गुज़र जाए कि मैं नींद में आराम में ही रहूं और महीना गुज़र जाए। तरावी की मौसम है, तरावी हो रही है, कुरान का सिमा होगा, कुरान की बरकत रहमत होगी, तो इसलिए आदमी कुरान करीम के लिए आ रहा है। तो इस किस्म के लोगों के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने खुशखबरी फरमाई कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, कि उनकी करवटें, उनके किनारे, उनके जिस्म ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, बिस्तरों से अलग रहते हैं। अब ये बिस्तरों से अलग रहना, आजकल भी तो बिस्तरों से अलग रहते हैं। कोई रात के वक़्त में होटल में बैठता है, कोई नौजवान मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, कोई गली के अंदर बैठ जाता है, और चोर अपनी चोरी करने के लिए देहातों के अंदर निकल जाते हैं, डाके लगाने वाले डाके लगाने के लिए चले जाते हैं, कोई गुनाहगार बदमाशी के लिए चला जाता है। लेकिन फरमाया कि जो अल्लाह के लिए अपनी रातों को अल्लाह की इबादत के लिए जागते हैं, बिस्तरों से अलग रहते हैं, फरमाया यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, इनका ये काम नहीं होता कि होटलों पर बैठ कर के गपशप लगाएं और दुनिया की बातें करें, नहीं, बल्कि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, उनकी पुकार एक रब्बुल आलमीन को होती है। तो नमाज आदमी पढ़ते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, तो दोनों की सिफारिश कबूल। कुरान कहेगा कि या अल्लाह, मेरी वजह से नींद को कुर्बान किया, मेरी सिफारिश कबूल हो। रोज़ा कहेगा कि या अल्लाह, हर चीज़, खाने पीने के सामान, बेहतरीन माकूलात, मशरूबात, हर चीज़ उसके पास मौजूद थी लेकिन नहीं खाया, लिहाजा मेरी सिफारिश भी कबूल हो। हदीस पाक में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों की सिफारिश अल्लाह कबूल फरमा करके उसको जन्नत के हवाले फरमाएंगे। तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इस उम्मत के लिए आया, लेकिन हम इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को, जो उसका हक है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके इसका हक अदा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ये जिम्मेदारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया के अंदर आए, तारीख़ की किताबों ने यही लिखा कि सरादेब के इलाके में, जो हिंदुस्तान के करीब, हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ से नुज़ूल हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। सफ़र करते 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 मक्का मुकर्रमा के करीब जिद्दा में पहुँच गए। आज भी हाजी साहिबान उम्रे वाले जब एयरपोर्ट पर जाते हैं, वो जिद्दा एयरपोर्ट, हज़रत बीबी हवा का नुज़ूल उसी जिद्दा के अंदर हुआ। जिद्दा का माना दादी, क्योंकि हज़रत बीबी हवा का नुज़ूल वहाँ पर हुआ था। अब हज़रत बीबी हवा चूँकि औरत, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मर्द तकलीफ़ कुछ ज़्यादा करता है, तो कहाँ सरादेब का इलाका, कहाँ हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यहाँ से गुज़र करते 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 समंदर के किनारे से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँचे। अरफात का मैदान जिन हजरात ने ज़ियारत की है, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो अरफात के मैदान के अंदर, क्योंकि अरफात अरफा से लिया गया है, जिसकी माना ही पहचान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी हवा को वहाँ पर पहचाना कि तू वही है जो जन्नत में हमारी मुलाकात हुई थी। एक दूसरे को पहचाना। वहाँ पर एक जबल है जिसका नाम है जबल नूर, तो वहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया।
हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई पानी था, पानी के अंदर अपनी शक्ल देखी। अब दूर दराज का इलाका, सफ़र करते करते टाइम लग गया, मट्टी गिरदो गुबार हर चीज़ जिस्म पर आ गई, थोड़ी सी मिट्टी लग गई तो मट्टी के लगने की वजह से थोड़ा रंग भी काला हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये मेरा हुस्न व जमाल तो नहीं था जब मैं जन्नत के अंदर था। इंतहाई नेमतें, साफ और शफाफ माहौल, इतनी साफ और शफाफ वहाँ की औरतें यानी हूरें हैं कि 70,000 पर्दों के अंदर मौजूद हैं। अगर उनका एक थोड़ा इधर दुनिया के अंदर झांक लें तो तुम्हारा ये सूरज भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी हूरें अल्लाह जल्ल जलालहू ने पैदा फरमाई। तो जन्नत का हुस्न और जमाल बहुत आला। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने यहाँ के हुस्न और जमाल को देखा तो जन्नत का हुस्न और जमाल नज़र आ गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ पर कितना मुझे हुस्न और जमाल था, कितनी मेरे चेहरे के अंदर खूबसूरती थी, आज मेरे रंगत थोड़ी तब्दील हो चुकी है। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ फरमाई कि रब्बा जन्नत के अंदर क्या तूने नेमत अता फरमाई। अब पहले तो सबसे पहले तो गुनाहों की माफ़ी, जो इज्तिहादी गलती निस्यान भूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हो गई, उसके लिए दुआएं फरमा रहे हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अब गुनाहों से तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हो गए पाक। अब जब चेहरा देखा तो फिर अल्लाह से दुआएं करने लगे, या अल्लाह वहाँ का हुस्न और यहाँ की रंगत, ज़मीन और आसमान का फ़र्क, ये क्यों? अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से हुक्म हुआ कि ए आदम हर महीने के 3 दिन रोज़े रखो, जिन दिनों को कहा जाता है अय्याम बीस। अय्याम बीज उनको कहा जाता है। बीज का माना है सफ़ेदी। जब दिन भी सफ़ेद, दिन तो वैसे भी सफ़ेद होता है, दिन भी सफ़ेद और रात भी सफ़ेद। अब दिन भी सफ़ेद और रात भी सफ़ेद। अब वो खुद ही आप अंदाज़ा कर लें कि वो कौन सी रातें होती है जो रात की चांदनी बहुत तेज़ होती है। कौन सी रातें हैं जी? 13, 14 और 15। 13, 14 और 15 ये रातें इंतहाई सफ़ेद होती हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू का हुक्म हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये 3 रोज़े रखो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ा रखा 13 तारीख का। शाम के वक़्त किसी पानी के ऊपर फिर गए, चेहरा देखा कि फ़र्क आ गया। फिर 14वीं का रोज़ा रखा, फिर देखा कि फ़र्क आ गया। फिर 15वीं का रोज़ा रखा, फिर देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर, उनके खाल के अंदर अल्लाह ने वही रौनक अता फरमाई जो जन्नत वाली थी। तो इसलिए यही हुक्म होता है कि आदमी कैसा भी हो, लेकिन जब आमाल सालिहा करता है तो अल्लाह जल्ल जलालहू आमाल सालिहा की वजह से उसके चेहरे के अंदर खूबसूरती अता फरमाते हैं। क्या वजह है कि जो अल्लाह वाले, जो अल्लाह से डरने वाले बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, चारपाई पे मौजूद है। हज़रत सैयद अब्दुल समद साहब अब भी चेहरे के अंदर देखो कि जो मोबाइलें चलाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, अभी भी ज़ेर इलाज शक्कर के अंदर, अल्लाह उनको शिफाए कामिल नसीब फरमाए। फिर भी देखो कि चेहरे के अंदर कितनी रौनक है। तो ये अल्लाह वालों के चेहरे के अंदर रौनक, ये अल्लाह की मारिफत की वजह से, अल्लाह की इबादत की वजह से होता है। तो इसलिए जब आदमी अल्लाह का बन जाता है तो अल्लाह जल्ल जलालहू दुनिया के अंदर उसको जन्नत के हुस्न का थोड़ा टुकड़ा अता फरमाते हैं, बकिया मुकम्मल हिस्सा वहाँ पर। हज़रत आदम को चूँकि वहाँ पर मिल चुका था, लिहाजा वही तक वापस आ गया। हर एक को तो वो हुस्न नहीं मिलेगा, लेकिन जो जन्नत में जाएगा तो सबको हुस्न व जमाल मिलेगा। तो बहरहाल ये रोज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर भी हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा एक दिन नहीं रखते थे। मूसा अलैहिस्सलाम पर रोज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम पर रोज़ा, लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया कि अय्याम मअदूदात, हमेशा नहीं चंद दिन है, और वो 1 महीना है साल भर के अंदर। 11 महीने खाते पीते रहो, 1 महीना अल्लाह के लिए रोज़ा रखो और खाने पीने को छोड़ दो। और इसका नतीजा क्या होगा? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा और परहेजगारी आ जाएगी। तो बहरहाल रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अनकरीब आ रहे हैं।
اور پھر اس کے اندر تراویح بھی ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے، تقریباً ہر جگہ پر چاند نظر آیا سارے جنید بغدادی بن جائیں گے، سر پہ ٹوپی آ گئی، مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہر نماز میں پہلے قرآن کی تلاوت بھی شروع، لیکن پورا مہینہ بھی نہیں۔ 2 دن 3 دن کے بعد جو مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے تراویح کے اندر، 3 دن کے بعد آدھی جماعت، 10 دن کے بعد وہ بھی ختم۔ اس طرح کی بات نہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ جب رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس کی تیاری ہمیں کیا کرنی ہے؟ اس کے اندر گناہوں کو بخشوانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، تیاری اس کے لیے پہلے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برکت عظمت کو بیان فرمایا تو ان سے آنے سے پہلے، آخری تاریخ تھی شعبان کی جب حضور نے خطبہ دیا، تو ہمارا معلوم ہوا کہ جب تیاری ہوتی ہے تو تیاری پہلے سے ہوتی ہے۔ عین ٹائم پر جا کر کے آدمی تیاری کرے تو یہ تیاری حقیقت میں نہیں ہوتی۔ اچانک مہمان آ جائے، ایک مہمان پہلے سے بتا کر کے آتا ہے، بھئی فلان تاریخ کو فلان دن کو میں آؤں گا، پہلے سے تیاری ہوگی، جیسا مہمان ویسا انتظام۔ لیکن اگر آ جائے اچانک مہمان تو بھی سندھی میں جا چاہتا ہوں بابا اویلو مہمان پٹائے پان، وہ یہ چاہتا ہے نا اویلو مہمان پٹائے پان، مطلب جو بھی ہوگا گھر میں، اگر خالی روٹی ہوگی تو بیچارے کو وہی دیں گے، اگر پہلے سے انتظام موجود ہے تو پھر اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب اسی طرح رمضان المبارک آیا نہیں، اس سے پہلے رمضان بخشش کا مہینہ، رمضان رحمت کا مہینہ، رمضان مغفرت کا مہینہ۔ اب اس کے لیے تیاری یہ ہے کہ مغفرت کے لیے گناہوں سے رک جانا، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے رک جانا۔ اب یہ گناہوں سے رک جانا، یہ تیاری پہلے کرنی ہے۔ اس لیے میں یہ مثال دیتا ہوں، آج کل نوجوان بھی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں یا گاڑیاں چلا رہے ہیں، اسپیڈ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ان سے ہی پوچھو کہ بھائی اگر سامنے کھڈا آ جائے، آدمیوں کا ہجوم آ جائے، کوئی بچہ، کوئی آدمی، کوئی پیدل جانے والا، کوئی دیوار وغیرہ آ جائے، دور سے دیکھا تو پہلے سے بریک لگائے گا، یہ بچ جائے گا۔ لیکن جب دیکھ بھی رہا ہے کہ یہاں پر کھڈا ہے، لیکن بریک تب لگاؤں گا جب کھڈے پر پہنچوں گا، کھڈے پر پہنچ کر پھر بریک لگائے تو بچے گا، نہیں بچ سکتا۔ یا تو خود کھڈے میں گرے گا، اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ان کا جو چلانے والوں کا تجربہ ہے، زور سے بریک لگانے کی وجہ سے گاڑی اس طرح ہو جاتی ہے، منہ اس طرف ہوتا ہے، تیز بریک لگانے کی وجہ سے اگرچہ پیچھے والا ویل بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بریک کی وجہ سے پیچھے والا ویل آگے، آگے والا پیچھے، اس طرح تقریباً ہوتا ہے۔ تو اب ہم بھی اس طرح ہی کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ ڈرائیور اپنے آپ کو بھی مارے گا، کھڈے میں گرے گا، عین ٹائم پر جا کر کے جب بریک لگائے گا تو اس کا ویل بھی اس طرح۔ تو آج کل والے لوگ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، تبھی تو بھاگ جاتے ہیں۔ جب رمضان آ گیا تو پھر گناہوں کو بریک، عین ٹائم پر جا کر کے بریک لگا کر کے پھر عین ٹائم پر بریک، پھر واپس۔ تو اس لیے جب رمضان آتا ہے جانے کے بعد وہی واپس، وہی راستہ۔ ہمیشہ عبادت کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آئے اور پھر رمضان گیا تو مسجد بھی گئی، رمضان گیا قرآن بھی گیا، رمضان گیا تو اللہ کا گھر بھی چلا گیا، یہ نہیں۔ تھوڑی سی عبادت ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ استقامت ضروری ہے، اور استقامت اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شیشے کے اندر اپنی داڑھی مبارک کو دیکھا کہ سفید بال آ گئے۔ حضور نے فرمایا شیبتنی ہود، ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا سورہ ہود کے اندر واقعات ہیں پہلے والے امتوں کے، ان کے ہلاکت و تباہی کے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا سورہ ہود میں ایک آیت ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ فاستقم کما امرت، اے نبی جو آپ کو حکم کیا گیا ہے اس پر ہمیشگی کرو۔ یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھی، صرف رمضان کا مہینہ آئے اور پھر چلے گئے۔
अक्सर जुम्मे वाले दिन भी ऐसे ही करते हैं, भाई सिर्फ जुम्मे वाले दिन आएंगे। उनके दिल के अंदर भी, दिमाग के अंदर भी यही बात होती है, बस सिर्फ जुम्मे वाले दिन जाना है। और रमज़ानियों के लिए सिर्फ ये होता है कि भाई सिर्फ रमज़ान का महीना जाएंगे, उसके बाद 11 महीना देखा जाएगा। तो ये इस्तिकामत नहीं, इस्तिकामत लाजमी है। तो जो आदमी इस तरह करते हैं, ये इसी ड्राइवर जो हरकती और शरारती ड्राइवर है, ये शरारती ड्राइवर की तरह या अपने आप को मारेंगे, अगर नहीं तो वो फिर वापस वही मुड़ करके वही गुनाहों के अंदर, रमज़ान जो गोया कि आया ही नहीं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि रमज़ान मुबारक का महीना जब आदमी आए, ये दिल में ख्याल रख कर के आए कि या अल्लाह तूने बुलाया है और कबूल फरमा, या अल्लाह तूने बुलाया है अपने दरवाजे पर, अब हमें कबूल फरमा। जब आदमी कबूल हो जाता है, वो कभी बाहर नहीं जाता, वो बाहर नहीं जाता। 5 वक्त नमाज जो पढ़ते हैं, अब अल्लाह जल्ल जलालहू हमें पसंद करते हैं, तभी तो एक नमाज के बाद फिर दूसरी नमाज, फिर तीसरी नमाज, फिर चौथी नमाज, रोज़ाना हर दिन मस्जिद के अंदर आते रहते हैं। ये यकीन कर लो कि अल्लाह ने तुम्हें पसंद किया, तभी तो अपने घर में आने की तौफीक देते हैं। जब अपने घर में आने की तौफीक देते हैं तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी यही दुआ करनी कि या अल्लाह जिस तरह अभी आए हैं, इसी तरह पूरा साल बल्कि पूरी ज़िंदगी हमें अपना बना ले और कबूल फरमा, गुनाहों से भी अलग कर, तो अपनी मारिफत और मगफरत हम सबको नसीब फरमा। तो 12 रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह पाक इसके हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर तरावीह की नमाज भी ज़रूरी है, रोज़ा भी ज़रूरी है, तरावीह की नमाज भी ज़रूरी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो आदमी रमज़ान का रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता है, तरावीह पढ़ता है, और उसका काम क्या है, फरमाया ईमान भी हो और सवाब की उम्मीद भी हो। फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो पहले गुनाह कर चुका है, अल्लाह ने तमाम सगीर गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो इसलिए बख्शिश का महीना है, अल्लाह जल्ल जलालहू हम सबको रमज़ानुल मुबारक का एहतराम नसीब फरमाए, रोज़ा रखने की भी तौफीक अता फरमाए। ये नहीं कि सिर्फ खाने पीने की रातें हैं, ये नहीं। बज़ाहिर तो यही लगता है कि भाई खाने पीने के मज़े होते हैं, ये मज़े अल्लाह अपनी मेहरबानी से करवाए तो अलग चीज़ है, लेकिन मकसूद हमारा ये नहीं। मकसूद ये है कि जो रोज़ा रखते हैं पूरा दिन, अल्लाह पाक इन रोज़ों को कबूल फरमाए, और जो रोज़े का मकसद है तकवा, अल्लाह वो भी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।